सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएसई मेट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर और ये वीडियो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अगेन यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अलग ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस के लिए। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस इन देयर ग्रुप 3, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एंड आई अपोलोजाइज टू एवरीवन जो भी इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस के स्टूडेंट्स हैं कि I couldn't bring videos from the last 3 to 4 days, but today, as which is your last day of preparation, I'm bringing this video. So hope so this video becomes helpful to you all. First of all, let's come to the paper pattern. Paper का pattern कैसा है? It's the same like all the group 3 subjects. First of all, there's a 100 marks theory paper and there is a 100 marks of internal paper. Your 100 marks internal, or you can say practical. Now, कल आपको 100 मार्क्स का थ्योरी देना है, उसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आएगा। सेक्शन ए यू विल गेट फर्स्ट ऑफ ऑल 20 MCQs and then you will get 5 questions of 2 marks and again 5 questions of 2 marks. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 marks, 10 marks, 10, 10, 10, 10, 20, 20, 40 marks का सेक्शन है। So section B will be of 60 marks. There will be 6 questions in this. Question number 4, question number 5, question number 6, 7, 8 and 9. There will be 6 questions in this. And what will happen in this is that every question will have 3 subparts. And each subpart will be of 5, 5, 5 marks. So everywhere there is this only 5, 5 marks. Now out of these 6 questions, you have to only attempt 4 questions because 15 marks per question is there and 15 into 4 is equals to 60. You have to attempt only 4 questions out of the 6 questions given. Now let's straight away come to the syllabus कि आपको पढ़ना क्या क्या है. Do not study anything irrelevant but study all the things which are there in this syllabus. सबसे पहले there is a theory 100 marks, caring for our basic resources, caring for soil. इन्वायरमेंटल साइंस का बेसिस ये आपका बनाता है इन्वायरमेंट के बारे में, और जितनी भी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट के बारे में होती है that is important for examination. First of all, it is caring of our soil, causes and consequences of soil erosion. कि soil erosion क्यों होता है? You have studied in geography also कि soil erosion के बारे में कि improper land use, deforestation, पेड़ काटना, overgrazing, अगर आपके cattle है वो ज़्यादा ग्रेज कर जाए, घास खा जाए एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो इम्पैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, इम्पैक्ट क्या होता है? फूड प्रोडक्शन पे होता है कि कम उपज होती है, कम फूड प्रोड्यूस होता है, जनरेशन ऑफ वेस्ट लैंड, आपकी लैंड एकदम वेस्ट हो जाता है, यू कैन नॉट ग्रो एनीथिंग देयर, सिल्टिंग ऑफ वाटरवेज एंड डैम्स, डैम्स में आपका आप देखो जब सॉइल इरोजन होगा तो आपकी जो सॉइल है इट विल erode away, and for example water से हुआ है so water will take that soil away and it will silt your waterways और डैम्स वाले एरिया में मिट्टी जम जाएगी। सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज एक होती है, कंटूर फंडिंग होती है और ट्री ब्रेक्स होती है, चेक डैम बनते हैं, स्टडी ऑफ सॉल्यूशंस एंड देयर एप्लीकेबिलिटी, एग्जांपल सच एज ऑरोविल्स वर्क एंड तरुण भारत संघ वर्क। इन दो के वर्क के बारे में आपको केस स्टडी पढ़नी है, ऑरोविल्स वर्क के बारे में एंड तरुण भारत संघ वर्क के बारे में। यानी फ्यूल वुड क्राइसिस, जो वुड है उसके बारे में क्या क्राइसिस है कि to develop an understanding in students that a very large section of Indians still use firewood as fuel, the impact it has on nature in terms of fast dwindling resource and the pressure put on surviving forest. इसका मतलब है अगर in more amount this fuel wood will be used so that it will also have an impact in the environment, in the natural resources, क्योंकि वो फटाफट से ख़त्म हो रहे हैं और forest हमारे survive नहीं हो पाएंगे, and also it will have impact on the poor people. Poor people will get very very health impacts from this, especially the women, because they are cooking from these firewood only and it is emitting the smoke which is too much dangerous for their health. And we have waste generation, its toxicity and impact on land and life. Waste के बारे में पढ़ना हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? Soil के बारे में we have studied, then we have studied about fuel wood के बारे में, soil conservation, and now it's time for waste generation. ये सब आपने geography में you have studied it. The politics of waste dumping, the unmanageable waste that we generate, leaching of toxins from landfills,
into water bodies, agriculture wastes and issues around incinerating waste. Incinerating waste मतलब waste को जला देना. लीचिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम लैंडफिल्स इनटू वाटर बॉडीज का मतलब, लीचिंग का मतलब है कि किसी ऊपर से नीचे बैठ जाना. मतलब फॉर एग्जांपल लैंडफिल्स में टॉक्सिन्स थे, वो जब पानी से नीचे सेटल हो जाते हैं एंड दे फ्लो डाउन इनटू द वाटर बॉडीज. ये है. एंड देयर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, यू कैन यूज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे वेस्ट ट्रीट किया जाता है. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट एंड स्ट्रेटजीज टू रीयूज वेस्ट, हाउ वी कैन रीयूज रिसाइकिल इट. ये आपको सभी चीज़ें पढ़नी है इसमें. And then we have evolving solutions to treat waste and the scope of limitation of end of pipe treatment, combating deforestation, JFM and community forestry. ये कुछ terms आपको पढ़नी है. And there is alternative to timber. Timber आपका wood ही होता है. इसमें design solution, alternative material etc. So हम wood के place पे क्या use कर सकते हैं वो है, और आपके जो वेस्ट को ट्रीट करने के न्यू मेथड्स भी सब आपको पढ़ने हैं. बाकी ये एक्टिविटी विजिट है, ये आपने अगर किया होगा स्कूल में तो प्रीटी गुड. इट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम. देन आफ्टर द, अभी आपका ये बेसिक रिसोर्सेज वाला चैप्टर ही ऑनगोइंग है, because there are just 4 units in this. Now there are caring for air. We have seen about caring for soil. सॉइल के बारे में देख लिया, ये सब ट्रीज वगैरह सब सॉइल के अंदर आता है. नाउ देयर इज केयरिंग फॉर एयर. हवा के लिए कैसे केयर कर सकते हैं हम. टेक्निकल मेथड्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, बारिश जो इंड्यूस कराते हैं, साइक्लोन सेपरेटर्स है, वेट स्क्रबर, बैक फिल्टर्स, फ्लूइड बेड बॉयलर्स. ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, बिकॉज देश के जो पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली. सो एयर कूलर्स आ रहे हैं, एयर प्योरीफायर्स आ रहे हैं. उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है कि मेथड्स विच कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन. स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज है, पेनल्टीज, सब्सिडीज एंड बबल थ्योरी. दिस बबल थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. जितनी भी आपकी थ्योरी है, मेन कॉन्सेप्ट है, यू नीड टू स्टडी देम इन अ ग्रेट डिटेल. हाउ वी कैन रिड्यूस air pollution by economic means? By penalties. We can apply some penalties on people who are indulged in air pollution and give some subsidies who are helping to reduce air pollution. Technical में hybrid vehicles are there, alternative fuels are there, and energy vehicles. Hybrid vehicles में आपको EVs आते हैं, electronic vehicles, and alternate fuels like E20 is a fuel which can be considered as a healthy one option also, and energy vehicles are there. Traffic management is also great. Study of Curitiba in Brazil, synchronized singles, use of lanes, one-way road, etc. ब्राज़ील में एक शहर है क्यूरिटिबा, उसके बारे में आपको स्टडी पढ़नी कि हाउ ट्रैफिक इज मैनेज्ड देयर. देन इट इज लेजिस्लेशन एज अ मीन्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. मीन्स क्या क्या न्यू लेजिस्लेशन का मीनिंग होता है, टू मेक लॉज. व्हाट आर द लॉज मेंट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. द रोल ऑफ लॉ इन कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन इन एग्जांपल्स लाइक द ताजमहल, ट्रेपेजियम, दिल्ली सिटी, ऐसे ऐसे अलग जगह पे. व्हाट आर द मेथड्स, व्हाट आर द लॉज टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड देयर एप्लीकेशन. ये जो सैटेलाइट्स है, जो रिमोट, जो ज़मीन को सेंस करके वहाँ पे पता लगाती है कि कैसी कंडीशन है, उनके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे. वाई इज सच अ गुड टूल एंड व्हाट कैन इट बी यूज्ड फॉर. मीन्स वाई इट इज़ अ गुड टूल एंड व्हाट कैन इट बी यूज्ड फॉर, ये पढ़ना है आपको. इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑन एयर पोल्यूशन. इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या, इंटरनेशनल लॉज क्या है, हाउ दे आर ड्रॉन एंड लिमिटेशन विद इम्प्लीमेंटिंग. सी यूरो 1 यूरो 2 पढ़ना है. बाकी ये तो एक्टिविटीज़ है. देन देयर इज अबाउट द केयरिंग फॉर आवर वाटर. वाटर के बारे में आपको पता ही है. टेक्निक्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट. वाटरशेड मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है. कंजर्विंग वाटर बॉडीज. स्टडी ऑफ इंडिजिनस एग्जांपल्स लाइक द एरी सिस्टम ऑफ तमिलनाडु और राजस्थान सिस्टम और एंड न्यूली इवॉल्विंग मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट. एंड Ramsar Convention. Ramsar Convention is a type of law or treaty which is formed under this particular head. सब आपको पढ़ना है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिस वाज आल्सो देयर इन ज्योग्राफी. रूफ वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू percolation pits and water harvesting in rural areas through check dams and bunds. And the need for the above and scope. इनका need क्या, what is the need for all these things, and उनका scope क्या, उनसे फ़ायदा क्या मिलेगा हमें. And small dam versus large dam. Analysis: can many small dams replace a large dam? Do large rivers require large dam only? Issues around large dam, scope and limitation of small dam, other possibilities like micro hydel, mini hydel and runoff river. इसमें वो पढ़ना है कि स्मॉल डैम एंड लार्ज डैम में फ़र्क क्या है. कैन जहाँ पे लार्ज डैम है, कैन दे बी टू मेनी स्मॉल डैम यूज्ड, एंड जहाँ पे
लार्ज रिवर से वहाँ पे क्या सिर्फ लार्ज डैम ही फॉर्म हो सकते हैं? ऑल दिस थिंग यू टू स्टडी इन दिस। एंड देयर इज वाटर रिसाइकलिंग। वाटर रिसाइकलिंग तो आपको पता ही है। यू कैन ऑल्सो रिसाइकल वाटर फ्रॉम द सीवेज। वाटर वहाँ पे ट्रीट किया जाता है एंड वाटर इज प्योरीफाइड देयर। Alternatives to existing sewage treatments like dry compost toilet, dry toilets also we can use. Decentralized answers to centralized one. Use of decomposed night soil as a fertilizer as in China. China के example से आपको यहाँ पे pernicious activities. Then the resource use is that impact of globalization on environment. जो अब ये globalization हुआ है हर चीज़ का, उसका environment में क्या है? Understanding the basic intention of globalization. Globalization का आपको intention पढ़ना है, meaning पढ़ना है. The possibility and challenge of a global economy. Impact of globalization on developing countries, increased disparities, national debt and recession, impact on human resources and natural resources. Means जो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मतलब हर चीज़ ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर की सारी इंडस्ट्रीज विल कम इनसाइड इन योर कंट्री एंड दे विल वर्क देयर, दे विल हैव बिजनेस देयर. इसमें आपको क्या पढ़ना है? देयर इम्पैक्ट टू स्टडी और इंक्रीज डिस्पैरिटीज पढ़नी है, नेशनल डेप्थ देश का कर्ज के बारे में, रिसेशन यानी कि मंदी के बारे में, impact on human resources and natural resources पे क्या क्या impact पड़ा है. Then you have role of NGOs in sustaining environment. Study the work of a few NGOs. कुछ few NGOs के बारे में आपके उनके work के बारे में पढ़ना है. Choose an international, national and local NGO working in different areas. Issue based, women collectives and child welfare organization. आपको सब कुछ दिया है, सब आपके बुक में प्रेजेंट होगा. You have to study it. Then evolving a sustainable growth paradigm. Example Gandhi. लार्ज स्केल डेवलपमेंट वर्सेस विलेज कम्युनिटी बेस्ड सेल्फ सफिशिएंट ग्रोथ. ये लार्ज स्केल डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर फ्रॉम द ग्रोथ लेवल, फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल से ही ये सब होना चाहिए. व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी मीन? सस्टेनेबिलिटी का आपको पढ़ना है. जीडीपी वर्सेस ग्रोथ पैराडॉक्स. क्वेश्चनिंग द नोशन, द आइडिया that increase in power will bring about economic growth and this in turn will elevate poverty. मतलब कि अगर हम पावर को बढ़ाएंगे तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और जिससे पोवर्टी खत्म हो जाएगी. हाउ टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन डेवलपमेंट. यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्वेश्चन दिया है, पूरा आएगा. गांधी मॉडर्न मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट लाइक पंचायती राज की स्टडी पढ़नी है. एंड अ स्टडी ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स लाइक खादी, दस्तकर, ऑरोविल एंड गांधीग्राम. दिस 4 टाइप्स व्हिच मेनली गांधी जी हैज गिवन. इन सभी को बारे में आपको फ्यू एग्जांपल्स दिए इनकी स्टडी करनी है. आफ्टर दिस नॉर्थ साउथ divide and pattern of resources used in north and the south and the impact they have on the environment of both regions. And ये north south India में a kind of impartiality is divided, so how you have to study about how the resources are being consumed in North India and South India. This is the activity. Appropriate, now it is appropriate eco-friendly technologies. Now जो eco-friendly technologies हैं उनका इस्तेमाल करना है. इसके अंदर क्या क्या आती है? स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी. इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का मतलब है जो पुश्तैनी है, पहले से इस्तेमाल होकर आई है, उनमें लिमिटेशन क्या है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी लिमिटेशन पढ़ने. स्टडी इंडस्ट्री लाइक फिशिंग और वीविंग वेर बोथ टेक्नोलॉजीज आर प्रैक्टिस. आपको कोई भी फिशिंग की इंडस्ट्री या फिर वीविंग की इंडस्ट्री, यू हैव टू सी वेर बोथ दीज टेक्नोलॉजीज आर प्रैक्टिस. जहाँ पे इंडिजीनियस भी होता है, हाथों से बनाया जाता है, एंड टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन से भी प्रोवाइड किया जाता है. Need for developing intermediate and appropriate technology to be studied through the analysis of power sector, the limitation of all conventional sources and the scope of alternate energy sources. ये सब आपको पढ़ना है. Developing the least cost options यानी कि सबसे कम, जिसमें सबसे कम खर्चा हो उसके ऑप्शंस को आपको डेवलप करना है, फॉर्म करना है. Environment impact assessment EIA, their role including impacts while planning and the method to develop least cost options. ये कैसे हम we can employ the least cost options हम कैसे यूज कर सकते हैं. Dynamics of implementation, scope of grassroots upward planning rather than trickle down planning. मतलब हमेशा ग्रास रूट से ही ऊपर जाना चाहिए, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए. हमेशा नीचे नीचे से एक स्टेप वन स्टेप ऊपर ऊपर जाना चाहिए. ग्रोथ में कभी भी ग्रोथ पहले ऊपर की ग्रोथ होगी फिर नीचे नीचे, ऐसे में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होता है. Natural resource accounting, what is natural resource accounting, how to go about it, basic understanding with the aid of examples. Resource accounting यानी कि you have to take an account all the, एक पूरा लेखा जोखा होना चाहिए कि कितना रिसोर्सेज कहाँ इस्तेमाल हो रहा है. ये तो विजिट्स है. एंड इनिशिएटिव दैट आई कैन टेक, ये तो आई मेरे जो मैं ले सकता हूँ एक इनिशिएटिव. इसमें क्या है? इन माई लोकल इन्वायरमेंट मीन्स हाउ कैन यू गिव योर
give yourself for the local environment. In my future career choice, what are your initiative in your future career choice? And in supporting initiative in my state or country means how can you help your state or your country. By the end of class 10, the student must have a working understanding of the broad impact that his or her personal decisions can have on the environment and on society. The impacts of such understanding are that the student is responsible for the choices he made. He or she is capable for mobilizing responses. In whatever career context the student may function in life, there is a scope for applying environmental sensitivity, and there's a clear connectedness to people and a capacity to interpret processes and decisions in society and governance. This can be brought by discussion. In लास्ट जो आपका है ये एक आपका खुद का एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है कि आप अपने हिसाब से कैसे कर सकते हो. दैट्स इट. दिस वाज ऑल द थिंग इन योर इन्वायरमेंटल साइंस. और यही सब आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी बीच में उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिए. इफ़ यू वांट MCQs for this, if you want short answer the short questions for this, and if you want long questions for this and along with short notes for this, comment me below all these things and I will definitely give you all. बस आप comment कीजिए, then only I will make, because there are very few children in this subject. आप comment करेंगे, definitely I will make. So till then keep studying. Thank you very much.